Assalamu alaikum dear students. So beta, you hope you are fine. As you see, I'm going to discuss today about the change in the location of iron and steel industry. So earlier I discussed with you that is the iron and steel industry, a major industry, that is the iron and steel industry. And cotton textile industry are also in the class of major industry, and IT industries also fall in the category of major industries. So in the major industries, I discuss with you about the iron and steel industry. In earlier class, I mentioned with you this iron and steel industry is a industrial system like other industries. It has also industrial system. Industrial system means in this iron and steel plants there is also input, process, and output. So in any plant, in any industry where there is the input, process, and output, this inputting, process, and output is known as industrial system. So it is also known as the industrial iron steel plants are like other industries have also industrial system. The input is iron ore, coal, and limestone, and this is the input, and capital, other infrastructure, labor, power supply, these are the input material in this industrial system. The process is the wide range of activities, that is the wide range of activities are this smelting of this iron ore, and then after this is the refining. So after this smelting, the slurry material, the unnecessary material is drained out from the blast furnace, and the pig iron is collected. And then after there is the alloying, that is to mix the iron with the other substances to form the different alloys, to form the steel. So this is the one more process, and the output is the steel. Output is the steel. So these are the input, process, and output. So in the last furnace, so these things I already discussed with you in the earlier. So then after now we can say iron and steel industry are the feeder industries in that class, because they support the other industries, they give the base to other industries, or we can say these are the feeder because they feed the other industries. Because of iron steel industry, its product is used as raw material for the other industry, so it is known as the basic industries, backbone industry, on which other industries establish on the support of, because this gives the raw material to other industries, so we can say this is the backbone industry. And one more thing I discussed with you in the earlier class, today steel is often called the backbone of modern industries. जो already मैंने कहा, because everything we use of steel, from the safety pin to the aeroplane, in the automobiles, in the domestic appliances, and in the construction, in the roads, railway, and everything, in short everything is made of this steel. टिन्नी सब्सटेंस से लेके आप देखो इसमें स्टील का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है, और लार्ज बड़े बड़े आप देखो स्पेस क्राफ्ट से लेके बड़े बड़े शिप्स, या आप देखो ऑटोमोबाइल, ट्रेन्स वगैरह जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स है इनमें स्टील का. सो इट इज द one of the most, because why it is most preferred steel, it is tough substance, rust resistance, and durable. Now today's topic, that is the change in the location of iron and steel industry. So listen, अगर बेटा देखो ये जो इनकी लोकेशन अगर हम देखते हैं कि अगर हम इनकी लोकेशनल दिस प्लेसेस पे एक रिव्यू करेंगे, तो हमने देखा कि फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स टू दिस टाइम, तो यहाँ की लोकेशन में चेंज आ गई. जो इनकी आइडियल लोकेशंस थी, उनकी आइडियल लोकेशन में विद द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंज आती है. अर्लियर हम ज्यादा देख रहे थे कि मेजरली आयरन इंडस्ट्रीज कुछ पॉकेट्स में डिसलोकेटेड थे, लेकिन उसके बाद हम देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी उस आइडियल लोकेशन में चेंज आ गई. आफ्टर सम सेंचुरीज, आफ्टर सम टाइम पासिंग, सो देयर इज द चेंज इन दैट आइडियल लोकेशन. जो अर्लियर लोकेशन मानी जाती है कि आयरन स्टील प्लांट्स यहाँ पे लोकेट किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनमें देखा गया कि उसमें चेंज आ गई है, और उसके बाद पैसेज ऑफ टाइम के बाद और भी फिर उनकी अब उस लोकेशन में अब फिर से चेंज आ गई है. तो हम बोलते हैं कि द चेंज इन द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील विच वी सी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो हम हिस्ट्री ऑफ टाइम से देख रहे हैं, थ्रू आउट द अर्लियर टाइम से हम आज तक देख रहे हैं कि हम इनकी आइडियल लोकेशन में चेंज आ गए. तो अब हम देखेंगे कहाँ पहले लोकेशन थी, उसके बाद कब क्या चेंज आ गई, और कहाँ पे ये एस्टेब्लिश हो चुकी है, उसके बाद लेटर ऑन कहाँ से चेंज आ गई.
तो अगर हम बात करेंगे बिफोर 1800 सेंचुरी एडी, तो अगर हम 1800 सेंचुरी एडी की बात करेंगे, उससे पहले पहले देखा गया जनरली जो आइडियल लोकेशन होती थी आयरन स्टील प्लांट्स को ज्यादा लोकेट किया जाता है नियर द रॉ मटेरियल सोर्स, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल। जिस प्लेस पे रॉ मटेरियल अवेलेबल था या पावर सप्लाई वहां पे होनी चाहिए, फ्यूल दैट इज एंड रनिंग वाटर वहां अवेलेबल होनी चाहिए, तो वहां पे ज्यादा आयरन स्टील प्लांट्स को लोकेट किया जाता। उसके अलावा ज्यादा इनको अदर प्लेसेस पे नहीं, जहां ये चीजें अवेलेबल होती थी वहीं पे लोकेट किया जाता था, क्योंकि उसके लिए कुछ प्री रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कुछ लोकेशनल फैक्टर्स होनी चाहिए इंडस्ट्री, तभी तो वो सक्सेसफुल हुई। तो आयरन प्लांट्स को यहाँ लोकेट किया जाता था। ये 1800 हम देखते थे कि ज्यादा इन्हीं एरियाज में। लेकिन उसके बाद 1800 के बाद हम देखते हैं कि लेटर ऑन द आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू द कैनल्स एंड रेलवेज। अब यही नहीं रह गया है कि जहां रॉ मटेरियल पावर सप्लाई और वही, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जहां हमें दिस रेलवे लाइन अवेलेबल थी, रेलवे ट्रांसपोर्ट, तो हम वहां पे भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो हम रॉ मटेरियल रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो जहां हम पहले रॉ मटेरियल के नजदीक लोकेट कर रहे थे प्लांट, जहां ये उसके रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तो हम उसके नेबरिंगहुड में कर रहे थे या जहां पे पावर सप्लाई अवेलेबल था। लेकिन अब हमने कि हम लोकेट क्लोज को दिस दैट इज द रेलवेज के नजदीक हम कर रहे थे, रेलवेज फील्ड, सॉरी आई मीन रेलवेज ट्रैक्स के नजदीक। तो क्या था कि अब अगर हमें रॉ मटेरियल के नजदीक नहीं कर रहे हैं, क्यों, तो हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करा रहे थे रेलवे के जरिए। तो आप देखो रॉ मटेरियल इसको रेलवेज दो, इसलिए रेलवे के नजदीक भी हम अब कर रहे हैं। तो आइडियल लोकेशन में थोड़ी चेंज आ गई। अब उन्होंने हमने वो ट्रेंड था वो उसमें चेंज आ गई। जो ट्रेंड पहले ये फॉलो किया गया जाता था कि रॉ मटेरियल के नजदीक होना चाहिए पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई, उस ट्रेंड को अब चेंज किया गया। अब हम उन दिस रेलवे ट्रैक्स के नजदीक भी कर रहे थे। तो क्या रीजन था क्यों हम रेलवे ट्रैक्स, हमने ट्रेंड को क्यों चाहिए, क्योंकि अब हमें रेलवे के जरिए हम रॉ मटेरियल अगर वहां अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। चीप ट्रांसपोर्ट रेलवे होता था एज अदर, तो लार्ज बल्कि गुड्स को कैरी किया जाता था आसानी के साथ। तो जिसकी वजह से आप देखो हमने रेलवे के इर्द गिर्द अब लोकेशन एस्टेब्लिश की है। तो आप देखो हमारी लोकेशन में चेंज आ गई है। तो हम इसलिए बोलते हैं चेंज इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। या हम क्लोज कैनल्स एंड रेलवेज, या आप देखो हम रेलवेज के नजदीक के अलावा हम कैनल्स, क्योंकि इन कैनल्स के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए अब हमें जरूरी नहीं है कि हम रॉ मटेरियल के बिल्कुल नजदीक रहेंगे ताकि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। तो अब हम कैनल्स इन के जरिए आप देखो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए हम कैरी कर सकते हैं जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल होता है। सो दैट इज द रॉ मटेरियल जो जरूरत होता है, या बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, या हम रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट करेंगे या कैनल्स के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट। तो अब हमने आइडियल लोकेशन चेंज की, पहले इनके नजदीक नहीं किया जाता। हम ज्यादा सोचते रॉ मटेरियल सोर्स होना चाहिए और पावर सप्लाई। अब हम खाली कर रहे थे दिस कैनल्स और रेलवे के नजदीक, या कोल फील्ड्स इनको फ्यूल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे थे, या कभी रॉ मटेरियल भी आयरन में स्टील प्लांट्स में आप देखो ये एज ए रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल कर रहा था और फ्यूल सप्लाई को भी डिमांड फुलफिल कर रहा था। तो अब हम कोल फील्ड्स के नजदीक रॉ मटेरियल मीन्स आयरन ओर, अब हम आयरन ओर के नजदीक पहले पहले एस्टेब्लिश कर रहे थे। अब हम आयरन ओर के नजदीक अगर नहीं होगा वहां पे हम रेलवेज और कैनल्स के नजदीक भी, अगर हमें रेलवे और कैनल मिले तो हम वहां पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे पहले इसके नजदीक, अब हम इनके जरिए इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यही वजह है कि लोकेशन में चेंज आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 में आप देखो, तो आफ्टर दैट देखते हैं कि 150 ईयर्स के बाद हम देखते हैं फिर भी हमारे अब जो ये ट्रेंड किया था कोलोस कैनल्स एंड वगैरह, तो अब हम उसमें भी चेंज आ गई है। ये अब देखो चेंज क्यों आ गई 1950 में, क्योंकि आयरन स्टील वर्कर्स बढ़ गए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स एस्टेब्लिश हो गए, प्राइवेट पब्लिक प्लांट्स एस्टेब्लिश हो गए। तो हम देखेंगे द आयरन एंड स्टील वर्कर्स बिकम्स लार्ज इम्प्रूव। जो अब हम देखेंगे आयरन स्टील प्लांट जब ज्यादा बन गई तो उनको रॉ मटेरियल की ज्यादा डिमांड थी, उनको इनपुट मटेरियल की ज्यादा डिमांड थी। तो अब इनकी लोकेशन में भी चेंज आ गई। तो आप देखते हैं हम कि बिगनेस स्टील इंडस्ट्री बिगनेस टू लोकेट फ्लैट लैंड्स एंड नियर द सी पोर्ट्स। अब हम सी पोर्ट्स के नजदीक, प्लेन एरिया सी पोर्ट्स के नजदीक हम एस्टेब्लिश कर रहे थे। अर्लियर आप देखो सी पोर्ट्स के नजदीक इनको पहले पहले 1800 एडी की बात अगर हम करेंगे तो नहीं
नहीं देखने को मिलेंगे आपको सी पोर्ट्स के नजदीक। तो ये ट्रेंड नहीं फॉलो किया जाता था, सी पोर्ट्स के नजदीक आपको दिस आयरन स्टील प्लांट्स नहीं मिलेंगे बिफोर 18 रेलवे स्टेशन और कैनल्स के नजदीक भी नहीं मिलेंगे। तो पहले इस ट्रेंड को फॉलो किया जाता था, जहां पे आप देखो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, पावर सप्लाई और कोई रिवर वगैरह अवेलेबल, तो उसके इर्द गिर्द किया जाता था। तो उसके बाद आप देखो कुछ टाइम गुजरने के बाद लेटर उस ट्रेंड को चेंज किया गया। अब वही ट्रेंड हम फॉलो नहीं कर रहे, हमने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हम आयरन स्टील प्लांट्स को आप देखो जब रेलवे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो गया, कैनल ट्रांसपोर्ट, कैनल्स वगैरह वजूद में आ गए बहुत सारे, तो उनकी वजह से आप देखो हमने इनको कैनल्स और रेलवे ट्रैक्स के नजदीक किया था। अब क्या रीजन था आप देखो, क्योंकि इसकी वजह से आप देखो रॉ मटेरियल के हम ये अब हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गई है, हमें नेसेसरी नहीं रहेगी कि आप रॉ मटेरियल, क्योंकि अब हम रेलवे और कैनल रॉ मटेरियल की डिमांड फुलफिल रहे हैं, हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो भी आप देखो रिक्वायर्ड मटेरियल होता हम इनके जरिए, तो इसलिए आप देखो इनके नजदीक किया गया। उसके बाद लेटर ऑन टाइम 1950 के बाद अगर हम देखेंगे, अब हमने उस ट्रेंड को भी चेंज किया गया, क्लोज कोल्ड फील्ड्स वगैरह, जो हम ये नहीं आपको पहले देखने को मिलेगा, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा नियर द सी फोर्ट्स एंड देयर फ्लैट लैंड। सो रीजन क्या था, अब देखो क्योंकि स्टील वर्कर्स बढ़ गए, ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट्स वजूद में आ गई, तो अब देखो हमें रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा हो गई, रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना, या आप देखो फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो हमें सी पोर्ट्स पे आसान हो गया। अगर हमें किसी प्लांट को सी पोर्ट के नजदीक, तो इस सी पोर्ट के जरिए हम अदर कंट्री से रॉ मटेरियल को मंगा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी जरूरत हो चीजें होती है, तो ये चीजें हमें जनरली आपको इजीली अवेलेबल होते थे नियर द सी पोर्ट्स विद द चीप ट्रांसपोर्ट। सो ड्यू टू दिस चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नियर द सी पोर्ट्स and due to expansion in these iron and steel works, due to expansion in iron and steel plant, so there is the increased demand of raw material, and there is the this finished products increases, so production increases, and these seafooders fulfills easily the raw material। seafoods के नजदीक इनको raw material ओवरसीज ट्रांसपोर्ट आपको अवेलेबल था, seafoods के नजदीक ओवरसीज ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, ओशनिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल था, तो ड्यू टू विच so we can see that is the raw material is available at the seafooders, and also this imported of this finished product and export export of finished product and import of raw material, so this was easily accessible। so ये पोर्ट आपको लोकेशन, ये आपको जनरली लोकेशन नहीं मिल रही थी पहले, पहले आपको ये लोकेशन, उसके बाद टाइम गुजरने के बाद आपको थोड़ा कोलफील्ड से हट के ये आप देखो रॉ मटेरियल से हट के आप देखो कैनल्स और रेलवे के जरिए या कोलफील्ड के नाम मिले, तो आप देखो ट्रेंड में चेंज आ गया। उसके बाद ये देखा, सो दिस इज द चेंज इन द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट। तो अगर आपको वहां पे क्वेश्चन आए मेंशन द चेंज इन द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट दैट यू सी मस्ट थ्रू आउट दिस 1880, वो मेंशन चेंज करो जो आप देख रहे हो कि आयरन स्टील प्लांट की लोकेशन में चेंज आ गई, उसको आप थोड़ा यहाँ पे मेंशन करो, या मेंशन द चेंज इन द लोकेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट फ्रॉम 1880। सो बिफोर 1880 आपको मेंशन ऐसे ही करना है, आयरन स्टील इंडस्ट्री वर लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल सोर्स पावर and running water। later on this trend has changed, the iron and steel plant is now located near the canals and railways, and because why this because of this availability of transport fulfills the raw material, raw material is easily transported through railways and canals at these plants, so the plants are now established near the seaports, near the canals and railways ports। after 1940 steel workers begins to industry begins to this improve, and large steel workers occurred in our country, so the steel plants have now become established, यानी ये establish हो गए near the iron these seaports, यानी ये seaports के नजदीक हो गए, so because of easily available of this raw material from the overseas and export of this finished product, so this is the change in the location of iron and steel plants। so अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, so now अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इन इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर डेवलप्ड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। सो यू सी इंडिया इज द पॉपुलस कंट्री, and due to this population and economically active population, younger age group, due to this younger age group of population, India takes the advantage of this, because in the industrial plants there is the need of the labor, cheap labor, so because of availability of cheap labor they are established, they are developed many industries, particularly iron and steel plants। तो यही वजह है कि यहाँ बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, लेकिन डेवलप वो कैसे हो चुके हैं, वो सक्सेसफुल कैसे हो चुके हैं,
क्योंकि उन्होंने एडवांटेज लिया है। एक तो चीप लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल था, दूसरा आप देखो रॉ मटेरियल भी यहाँ पे आप देखो जो अगर हम देखेंगे डेक्कन प्लेटो रीजन जो साउदर्न प्लेटो है, इट इज द मिनरल हाउस, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो आप देखो उनमें आयरन पर्टिकुलरली आप देखो वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। आयरन के फील्ड्स है, कोल फील्ड्स है, या उसके अलावा अदर मिनरल्स वहां पे इजीली अवेलेबल है। सो ये दो चीजें अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे ये आयरन स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा आयरन स्टील प्लांट्स इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, तो उन्होंने किस चीज की वजह से वो डेवलप हो चुके, उन्होंने किस चीज का एडवांटेज लेके अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को सक्सेसफुल किया। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन इज द cheap labor available because India is the populous second populous country, and also one more thing, populous country के अलावा अगर हम देखेंगे इकोनॉमिकली एक्टिव यंगर एज ग्रुप पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है। सो ड्यू टू दिस cheap labor facility iron steel plants have easily availability of labor skilled and semi-skilled laborers. So due taking this advantage of this labor, this iron steel plants developed. So अगर हम देखेंगे लोकेशनल फैक्टर में अगर हम देखेंगे लेबर अवेलेबल होना चाहिए तो उनकी कमी नहीं हो गई, तो जिसकी वजह से वो यानी उनको हमेशा लेबर्स अवेलेबल रह गए और वो सक्सेसफुल हो गए, डेवलप हो गए। दूसरा इतना ही पॉइंट नहीं, लेबर नहीं है, दूसरा आप देखो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था। साउदर्न प्लेटो अगर हम देखेंगे डेक्कन प्लेटो या पर्टिकुलर हम कभी पेनिनसुलर प्लेटो भी बोल रहे हैं आप बेटा, तो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। सो एक इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए सबसे जो आपको लोकेशनल और डेवलप होने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल भी इजी अवेलेबल था। तो अगर हम देखेंगे जो वो छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह, दीज आर द वेस्ट बंगाल ओडिशा, दीज आर द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो यहाँ आयरन और इजीली अवेलेबल था, कोल इजीली अवेलेबल था। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक को सपोर्ट करने के लिए, एक प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर आयरन स्टील प्लांट को सपोर्ट करने के लिए आयरन और कोल तो अवेलेबल होना चाहिए और लेबर अवेलेबल, ये तीनों चीजें इंडिया में अवेलेबल थे। तो यही वजह है कि यहाँ सक्सेसफुल। अगर ये चीजें अवेलेबल ना होते तो शायद इतने आयरन स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश ना हो चुके, शायद ये डेवलप ना हो चुके होंगे। तो यही वजह है कि ये उन्होंने एडवांटेज लेके, लेबर का एडवांटेज लेके, यानी उनको लेबर फोर्स अवेलेबल था, या हम देखेंगे जो उनका मैन पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल था, रॉ मटेरियल का एडवांटेज लेके रॉ मटेरियल को इजीली अवेलेबल था, तो जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे प्लांट्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं और वो डेवलप हो चुके। उसके बाद आप देखो गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल था दिस इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया में, या वी कैन से साउदर्न एरिया में, ड्यू टू रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो दिस road transport also available, and good network of road transport available, railway transport, and one more thing that India is the this littoral country. So littoral country means it has the coastal, so India has the opportunity of this water transport, inland as well as the oceanic overseas transport. So oceanic transport और inland transport का आप देखो उन्होंने एडवांटेज लेके अपने प्लांट्स को डेवलप हो चुका है। एक प्लांट को डेवलप होने चाहिए, एक प्लांट को सक्सेसफुल या एस्टेब्लिश होने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर्स होने चाहिए। तो वो जो मेजर 5 इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर्स है, दैट इज द रॉ मटेरियल, वो इजीली अवेलेबल था बिकॉज द स्टोर हाउस साउदर्न इंडिया इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, सो मिनरल्स की शॉर्टेज नहीं थी, दैट आयरन और कोल। एंड सेकंड इज द लेबर, पॉपुलस कंट्री है, सो लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, ट्रांसपोर्ट मार्केट, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे गुड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, रेलवे एज वेल एज रोड, एंड बियॉन्ड ऑफ दिस देयर इंडिया हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस इनलैंड एज वेल एज द ओशियनिक ट्रांसपोर्ट। सो इनकी वजह से ये प्लांट्स डेवलप हुए इन्होंने। एंड मार्केट आप देखो पॉपुलस कंट्री है, तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेगा सिटीज है, सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, बिकॉज ऑफ दिस मार्केट इज आल्सो अवेलेबल। सो ये 5 चीजें एक अवेलेबल होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से इंडिया हैज आल्सो एबंडेंट वाटर सप्लाई। आप देखो वाटर सप्लाई इन प्लांट्स के लिए भी आप देखो इट हैज द माउंटेनियस एरिया, इन द माउंटेनियस फिजियोग्राफिक एरिया हिमालयन माउंटेन्स प्रोवाइड्स द पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर। यानी इंडिया को आप देखेंगे ड्यू टू दिस अबोर्ड ऑफ ग्लेशियर्स, दिस माउंटेनियस एरिया, माउंटेनियस फिजियोग्राफिक रीजन जो नॉर्दर्न इंडिया एंश्योर्स द कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। इन प्लांट्स को आप देखो वाटर सप्लाई होनी चाहिए, या कैनल्स इनको होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए कैनल्स के जरिए आप देखो रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता, वो इनको एंश्योर कर रहे हैं, वो भरोसा दे रहे हैं इनको कंटिन्यूअस सप्लाई, पेरिनियल सप्लाई ऑफ वाटर। दिस हिमालय रीजन प्रोवाइड्स द by the melting of glaciers, provides the this continuous supply of water, labor supply is easily available, transport is easily available. So because of these taking these factors advantage, iron steel plant is developed in India. So
ऑल इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, यानी इंडिया के हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है, नाम क्या उन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स का। वन इज द आयरन एंड स्टील, दैट इज द भिलाई। उसके बाद अगर हम देखेंगे भिलाई आयरन स्टील प्लांट, उसके बाद दुर्गापुर है, बरनपुर है, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बरनपुर स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट, यानी जिसका दूसरा नाम है टिस्को, ये झारखंड में आता है। और उसके आप देखेंगे रूरकेला, आरएसपी इसका बोला जाता है, बोकारो बीएसपी इसका फुल है, बोकारो स्टील प्लांट, रूरकेला स्टील प्लांट आर सिचुएटेड इन रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। आप देखो ये इतने स्टील प्लांट 5 स्टेट्स, सॉरी 4 स्टेट्स में स्प्रेड है। किसके स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में एंड छत्तीसगढ़ में। अगर हम देखेंगे भिलाई ये वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, बरनपुर वेस्ट बंगाल में, ये तीन पहले ही स्टील प्लांट जो है वो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। उसके बाद हम देखेंगे जमशेदपुर जो है दैट इज झारखंड में है, और रूरकेला बोकारो उड़ीसा में है। ये आप देखो सिचुएटेड है दीज 5 स्टेट्स में, सॉरी 4 स्टेट्स में ये सिचुएटेड है। तो आप देखो इतने स्टील प्लांट ये डेवलप हो चुके कि उन्होंने इन चीजों का ये अवेलेबल थे तो ये डेवलप हो चुके हैं। तो अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स के नाम बता, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बरनपुर स्टील प्लांट एंड जमशेदपुर स्टील प्लांट और रूरकेला बोकारो स्टील प्लांट, ये कितने से यानी ये 5-6 जो ये जनरली आप देखो मेजर आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड है these 4 states में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। नेम द 4 states which have the major iron steel plants, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, because this region has the good supply of water, good supply of transport and labor supply available, and also this region has the good supply of minerals. So the major iron steel plants are situated, concentrated in that belt, concentrated in that belt. So other steel plants अगर हम देखेंगे जो उसके अलावा हम other steel plants को देखेंगे जो इन 4 स्टेट्स के अलावा ये इन 4 स्टेट्स में है, तो उनसे भी बाहर आप देखो कुछ स्टील प्लांट्स है, लेकिन मेजर कंसंट्रेशन आपको इनको 4 में मिलेंगे ये ज्यादा स्टील प्लांट्स। लेकिन जो अदर स्टील प्लांट्स अगर हम देखेंगे दैट इज द दिस भाद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका। सो भाद्रावती एंड विजय नगर इन कर्नाटका। जो भाद्रावती एंड विजयनगर आयरन स्टील प्लांट है ये कर्नाटका में ये वाला है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सो विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सो उसके बाद एक और आयरन स्टील प्लांट है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सलीम इन तमिलनाडु आर अदर, सलीम इन तमिलनाडु आर अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। सो जो मेन स्टील प्लांट्स है जो कंसंट्रेटेड 4 स्टेट्स में है, मेजर आपको अगर आपको बोला जाए कि मेन स्टील प्लांट्स आर कंसंट्रेटेड इन 4 स्टेट्स, नेमली वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। अगर आपको वहां पे पूछा जाएगा कि नाम बताओ उन स्टेट्स के जहां मेजर आयरन स्टील प्लांट्स है, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील प्लांट्स है, वो 4 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो आर द सिचुएटेड स्प्रेड ओवर द 4 स्टेट्स। ये जो आप देखो इतने स्टील प्लांट्स है, क्यों ये यहाँ पे मैन आप देखो 4 स्टेट्स में हमारी ज्यादा क्यों एस्टेब्लिश्ड है? क्योंकि दिस रीजन हैज दिस पॉकेट हैज दिस गुड सप्लाई ऑफ दिस वाटर सप्लाई, मार्केट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो this area ensures the good supply of raw material and other steel. Name the other steel plants that are the Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka and Salem in Tamil Nadu. These are the other. So आप देखो यहाँ लॉट ऑफ आयरन स्टील प्लांट्स है, बहुत सारे आयरन स्टील प्लांट्स। तो आप देखो इतने आयरन स्टील प्लांट्स क्यों एस्टेब्लिश है हमारे कंट्री में? क्योंकि हमारी कंट्री में आप देखो गुड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, आयरन ओर इज अवेलेबल हियर बिकॉज इन दिस साउदर्न इंडिया डेक्कन प्लेटू this has the good this is the storehouse of minerals and that is this area ensures the good supply of raw material. And one more thing, our country has this good network of transport, railway and this road transport. Besides there is the opportunity of this oceanic transport, and this oceanic transport also help us in develop of this
steel plants, because we can this export the these finished goods and products and import the raw material and many other things. ये भी हम देख रहे हैं, या हम import भी कर रहे हैं, हम import भी raw material कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे plants है जहाँ से आप देखो import किया जाता था raw material को, आयरन और को import भी किया जाता था. तो आप देखो इसकी वजह से हम ओवरसीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से हम अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये फिनिश्ड गुड्स स्टील को. तो इसकी वजह से हमारे स्टील वर्कर्स एक्सपेंड हो गए, स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश हो गए. उसके अलावा देखो पॉपुलस कंट्री की वजह से लॉट ऑफ मार्केट प्रोवाइड हो रहा है. और उसके अलावा हम देखेंगे दिस लेबर सप्लाई अवेलेबल, जिसकी वजह से आयरन स्टील प्लांट्स इंडिया में सक्सेसफुल हो गए. तो हाउ यू सी दैट in what way these iron steel plants in our country developed, because our country has the ensured supply of this iron ore, and also besides this there is a good deposits of coal, and more of this our country has the good this railway and the network of transport and overseas transport. So due to these factors there is the ensured supply of this water also providing by the Himalayan glaciers. So because of these factors the iron and steel plants develop in our country. And name this important iron steel plants: Bhilai steel plant, Durgapur steel plant, Burhanpur, Jamshedpur, Rourkela, and this name the states in which the major concentration of iron steel plants, that is West Bengal, Jharkhand, Odisha, and other. Name the other states which have also iron steel plants. Other is the Tamil Nadu, that is the that steel plant is Salim, and Vishakhapatnam is one more. Andhra Pradesh में आप देखो Vishakhapatnam steel plant और Bhadra Vijayanagar in Karnataka. These are the other steel plants in our country. So this was the about the iron and steel plants.